Hello guys, welcome to George classes. Now today we start the dynamic second part. The topic is radial and transversal velocity and acceleration. Okay, now let's start. Radial and transversal velocity and acceleration. ओके तो हम लोग पढ़ेंगे क्या रेडियल और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन. ओके नाउ देन फर्स्ट वी नो व्हाट इज रेडियल एंड व्हाट इज ट्रांसवर्सल. नाउ वी हैव a coordinate axis. Now let a point P whose polar coordinate is r comma theta. This is polar radius, polar angle. Now the direction along the radius vector, this OP is radius vector, then the direction along the radius vector is known as radial direction. Okay, and the direction perpendicular to radius vector is known as transversal direction. Okay, and the velocity, the component of velocity along the radius vector is known as the radial velocity. Okay, and the component of velocity along the transversal direction is known as transversal velocity. Okay, now similarly for acceleration, this OPR comma theta is the polar coordinate. The component of acceleration along the radius vector is known as radial acceleration, and the component of acceleration perpendicular to radius vector is known as the transversal acceleration. Okay, this is the short form of acceleration. Okay, now we repeat. The direction along the radius vector is known as the radial direction, and the direction perpendicular to the radius vector is known as transversal direction. Okay, and the component of velocity along the radius vector is known as the radial velocity, and the component of velocity along the transversal direction is known as the transversal velocity, and similar for the acceleration. Okay, now the definition of the radial velocity. Radial velocity is the component of velocity along the radius vector is known as radial velocity. Now similar for the transversal velocity. The component of velocity perpendicular to radial vector or radial direction radial direction is known as transversal velocity. Okay, now radial acceleration. The component of acceleration along the direction of radius vector is known as radial acceleration. Now similarly for transversal acceleration.
आप लोग खुद लिख लीजिएगा इसके डेफिनेशन। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर इज नोन एज ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। ओके, नाउ वी प्रूव the expression for the now we prove the expression for the radial acceleration and transversal acceleration and radial velocity and transversal velocity. Okay, radial and transversal velocity. Okay, now let me draw a figure. This is the coordinate axis. A particle move like this curve. This is the position of particle at time t. Okay, this is r and this is theta. The velocity along OP is radial velocity, and the velocity along the velocity perpendicular to radius vector is known as transversal velocity. Okay, now the unit vector along the radius vector is r cap, and the unit vector perpendicular to radius vector or in the direction of the transversal is theta cap. Okay, now we can write this figure in language. Let position vector of a particle at point P, whose coordinate is r comma theta, at any time t is given at OP, which is equal to vector r, which is equal to magnitude r into r cap is the direction, which is the first equation, and r cap is a unit vector along radius vector OP, and the unit vector r cap is the direction along the radius vector, and theta cap is unit vector perpendicular to radius vector. Okay, this direction represent theta cap. Okay, r cap is the radial direction and theta cap is the transversal direction. Okay, now velocity of particle P r comma theta is dr upon d theta. This is the vector r. Okay, now and the vector r is equal to xi plus yj, the relation between vector and Cartesian. Now then vector v is d upon dt, and this can be written as r into r cap, because any vector can be written as magnitude multiply with this unit vector. Okay, now after differentiation we get r dr cap upon dt plus dr upon dt r cap. Now this is the equation second. Okay, now let r cap, this is the radial direction, which is equal to cos theta I plus sin theta j. Okay, and the theta cap, which is the transversal direction, which is equal to cos pi by 2 plus theta I, and sin pi by 2 plus theta j. Okay, now this relation come from vector r, which is equal to xi plus yj, and we know that the relation between polar and Cartesian, which is
x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Now we put the value of x and y in this, तो हम लोग पाएंगे r cos theta i प्लस r sin theta j. ओके, जब हम लोग x और y की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये मिलेगा. और हमें पता है कि वेक्टर r को लिख सकते हैं r विच इज़ मैग्नीट्यूड एंड r कैप इज यूनिट वेक्टर. देन r cos theta i plus r sin theta j. Now after divided by r, then we get r cap is equal to cos theta I and sin theta j. Okay, and for the theta cap, which is 90 degree plus for the from the radial direction. Okay, then for the theta cap is similar, but we add only pi by 2 in angle. Then we get cos pi by 2 plus theta I plus sin pi by 2 plus theta j. ओके, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे. ये हम लोग आप लोग को मैंने अपने समझाया. ओके, तो हम लोग मैंने ये आर कैप और थीटा कैप की रिलेशन ये लिख डाली. और हमें पता है कि जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे आर कैप का मैग्नीट्यूड, तो ये किसकी इक्वल आएगा, 1 की इक्वल आएगा. तो जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. और हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 1. सॉरी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1. और अंडर रूट में 1 आ जाएगा, और अंडर रूट में 1 की वैल्यू 1 होती है. तो मिलेगा कि आर कैप की वैल्यू 1. सिमिलरली हम लोग थीटा कैप के लिए लिखेंगे, बट इसमें फेस डिफरेंस कितने का आ जा रहा है, पाई बाई 2 का. तो पाई बाई 2 हम लोग ऐड कर लेंगे. ओके, तो हम लोग यहाँ तक लिख चुके थे. तो अब क्या करेंगे हम लोग, बाई इक्वेशन थर्ड को डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो मिलेगा क्या, डी आर कैप अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा आई इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस द डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा जे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा इज डी थीटा अपॉन डी टी. ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से डी थीटा अपॉन डी टी दोनों में से कॉमन ले लेंगे. तो क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो गया, कॉमन हो गया. ये किसके इक्वल है, डी आर कैप अपॉन डी टी, डी आर कैप अपॉन डी टी. और अभी इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, थीटा कैप के. क्योंकि जब हम लोग थीटा कैप को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा आई कैप एंड साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जे कैप. ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, थीटा कैप की इक्वल हो गई. तो अभी मिला कि एक्चुअल में थीटा कैप इंटू डी थीटा अपॉन डी टी. ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है कब, जब हम लोग प्रूव करेंगे द रिलेशन फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन में इस रिलेशन का यूज है. ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा. नाउ अगेन वी डिफ्रेंशिएट बाई, दिस इज इक्वेशन 4 बाई 4. तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे. देन वी गेट डी थीटा कैप अपॉन डी टी एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस साइन थीटा इज cos theta I cap and differentiation of theta is theta upon dt plus differentiation of cos theta is sin theta, sorry minus sin theta and d theta upon dt j cap. हम लोग भी इसमें से क्या करेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी कॉमन ले लेंगे. तो क्या बचेगा, माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा, सॉरी ठीक माइनस भी हम लोग कॉमन ले लेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा, जे कैप और डी थीटा अपॉन डी टी भी. ओके, एंड कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा आई, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, आर कैप की इक्वल है. तो हम एक्चुअल में मिला क्या, डी थीटा अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, आर कैप की, आर कैप डी थीटा अपॉन डी टी. ओके, तो हमें ये जो 5th और 6th नंबर का रिलेशन मिला, ये दोनों हमें यूज होगा ये दोनों भी यूज होंगे हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन प्रूफ करने में. और अभी तो फिलहाल में यूज हो ही रहे हैं. ओके, तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, जो हम लोग का इक्वेशन सेकेंड था, इक्वेशन सेकेंड हम लोग का क्या था, v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी आर कैप प्लस आर डी आर कैप अपॉन
dt। ये था हम लोग का क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दिखाता हूँ मैं आप लोग को। जो इक्वेशन नंबर सेकेंड था ये है। ओके, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम लोग फिफ्थ और सिक्स की हेल्प से यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे और फिर आगे जो हमें रिलेशन मिलेगा वो देखेंगे। तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन नंबर फिफ्थ वी पुट डी आर कैप अपॉन डी टी वैल्यू इज थीटा कैप अपॉन डी थीटा इंटू डी टी। नाउ वी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी आर कैप प्लस द वैल्यू ऑफ आर डी आर कैप अपॉन डी टी इज थीटा कैप डी थीटा अपॉन डी टी आर डी थीटा अपॉन डी टी एंड थीटा कैप। हमने क्या किया यहाँ पे, डी आर कैप अपॉन डी टी की वैल्यू क्या पुट की है, डी थीटा अपॉन डी टी इंटू थीटा कैप, इसको हमने यूज़ किया है। तो हमें क्या मिला, वेलोसिटी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी आर कैप प्लस आर डी थीटा अपॉन डी टी थीटा कैप। ओके, तो हमें पता है कि ये कंपोनेंट किसके अलॉन्ग है, रेडियल वेक्टर के, ये किसके अलॉन्ग है, ट्रांसवर्सल के। तो हमें यहाँ से क्या मिला, रेडियल वेलोसिटी क्या मिला, रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। जो मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल वेलोसिटी वो क्या है, डी आर अपॉन डी टी। और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी क्या मिला, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी ये हमें क्या मिला, थीटा कैप। थीटा कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन अलोंग द ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द ट्रांसवर्सल डायरेक्शन इज नोन एज ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। देन ट्रांसवर्सल वेलोसिटी का इक्वेशन क्या गया, डी थीटा कैप आर डी थीटा कैप अपॉन डी टी। ओके, this is the expression for the velocity. Now with the help of this velocity equation we prove the acceleration equation. तो हमें एक्चुअल में वेलोसिटी क्या मिला, v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी आर कैप प्लस आर डी थीटा अपॉन डी टी थीटा कैप। ओके, तो हमें पता है कि डी आर अपॉन डी टी इसे हम लिख सकते हैं आर डॉट, आर डॉट मीन्स फर्स्ट डिफरेंशिएशन, आर डबल डॉट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन। ओके, तो हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आर डॉट आर कैप प्लस आर और इसकी क्या लिखेंगे, थीटा डॉट इंटू थीटा कैप। ये क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म में। ओके, अगर हमें एंगल निकालना हो कि जो हम लोग का वेलोसिटी है, रेडियल वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, फाई बना रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या पता है, टेन फाई जो है वो स्लोप देता है। और जब हमें वेलोसिटी से के रिलेशन के हेल्प से निकालना है तो हमें क्या होगा, हमें पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यानी रेडियल वेक्टर के रेडियस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कौन सा है, ट्रांसवर्सल। तो हमें क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांसवर्सल डायरेक्शन, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, नीचे क्या हो जाएगा, रेडियल वेलोसिटी। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, टेन फाई। तो ट्रांसवर्सल वेलोसिटी हमें कितनी मिल कर रही है, ये है ट्रांसवर्सल वेलोसिटी और ये क्या है, रेडियल वेलोसिटी। इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, आर डी थीटा अपॉन डी टी अपॉन रेडियल पुट करेंगे डी आर अपॉन डी टी। तो हमें पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो एक्चुअल में हमें एंगल क्या मिला, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स आर डी थीटा अपॉन डी आर। हमें ये रिलेशन मिल गया है। ओके, और अगर हमें रिजल्टेंट पूछ दिया वेलोसिटी की तब क्या करेंगे, तो वी रिजल्टेंट ये क्या होगा, अंडर रूट रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्सल वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, हमें पता है कि रेडियल वेलोसिटी ये है, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी ये है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी डी आर अपॉन डी टी होल स्क्वायर प्लस आर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि डायरेक्शन निकालना वो कैसे निकालेंगे, और अगर मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का निकालना है वो कैसे निकालेंगे। ओके ओके, तो अब हम लोग प्रूफ करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलेरेशन रेडियल एंड ट्रांसवर्सल एक्सेलेरेशन,
रेडियल एंड ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। ओके, हमें पता है कि एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, एफ से। ओके, तो एफ वेक्टर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आर डी वी अपॉन डी टी। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। और हमें पता है कि वी इक्वल टू क्या है, आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। ये हमें वी की वैल्यू गिवन है। अब हम क्या करेंगे, जब वेलोसिटी निकालना है, सॉरी एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट आउट करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। आर कैप मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, आर डबल डॉट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थीटा डॉट थीटा कैप। अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, डी थीटा आर डॉट आर कैप प्लस डी अपॉन डी टी आर थीटा कैप थीटा डॉट थीटा कैप। ओके, फिर हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमें क्या मिला, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट। तो हमें क्या मिलेगा, डी आर कैप अपॉन डी टी आर कैप, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर डी आर कैप अपॉन डी टी आर डॉट प्लस, अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या मिलेगा, पहले हमें इसे करेंगे, इन दोनों कांस्टेंट रखेंगे, फिर इसको करेंगे और इन दोनों कांस्टेंट रखेंगे, फिर इसको करेंगे और इन दोनों कांस्टेंट रखेंगे, ये तो हमें पता ही है। तो डी थीटा कैप अपॉन डी टी आर एंड थीटा डॉट प्लस डी थीटा डॉट अपॉन डी टी आर थीटा कैप प्लस डी आर अपॉन डी टी थीटा डॉट अपॉन थीटा कैप। ओके, अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी पहले हम एक यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, आर डबल डॉट आर कैप, और हमें पता है टी डी आर कैप अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, यहाँ पर मैंने बोला था कि इस एक्सेलरेशन में और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन में इसकी वैल्यू यूज होगी। डी आर कैप अपॉन डी टी क्या है, थीटा कैप डी थीटा अपॉन डी टी, तो इसकी वैल्यू कितनी है, थीटा कैप डी थीटा अपॉन डी टी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, थीटा कैप डी थीटा अपॉन डी टी और आर डॉट पहले से गिवन है। फिर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू डी थीटा अपॉन डी टी डी थीटा कैप, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, डी थीटा कैप अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू भी देख रहे थे कितनी आई थी, क्या देख रहे हैं कि डी थीटा कैप अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस आर कैप डी थीटा अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, माइनस आर कैप डी थीटा अपॉन डी टी। इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, क्या है, माइनस आर कैप डी थीटा अपॉन डी टी, और ये पहले से गिवन है, प्लस इसे थीटा पे डबल डॉट कर लेंगे, आर थीटा कैप, प्लस इसे क्या करेंगे, आर पे एक डॉट थीटा कैप। ओके, फिर अगेन हम लोग इसको क्या करेंगे, इन दोनों के भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी आर डबल डॉट आर कैप प्लस ये क्या है, थीटा डॉट आर डॉट, और इसे हम लोग डायरेक्शन को लास्ट में लिखेंगे, थीटा कैप प्लस इसको लिखेंगे, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस ये देखिए यहाँ पे थीटा डॉट मिलेगा इसका वैल्यू, और पहले से थीटा डॉट है, दोनों मल्टीपल में, थीटा डॉट इंटू थीटा डॉट स्क्वायर, और आर पहले से है, और ये क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा, प्लस ये दोनों तो ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में दिए, आर थीटा कैप प्लस आर डॉट थीटा कैप, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि आर कैप वाले की यानी सेम डायरेक्शन वाले को एक पास लिखेंगे, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन के वाले हैं, तो फिर हम इसमें से
आर कैप को बाहर लिखेंगे, ये हो गया माइनस थीटा डॉट स्क्वायर इंटू आर आर कैप, और फिर हम थीटा कैप वाले को एक साथ लिखेंगे प्लस इसमें से थीटा कैप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा थीटा डॉट और डॉट, फिर ये है प्लस थीटा डबल डॉट और फिर ये है प्लस और डॉट थीटा डॉट, और सब में से हमने थीटा डॉट थीटा कैप कॉमन ले लिया था। तो हमें फाइनली मिला क्या, आर डबल डॉट माइनस थीटा डॉट स्क्वायर आर आर कैप, ये दो टाइम्स है तो ये ऐड हो जाएगा, क्या होगा टू थीटा डॉट आर डॉट प्लस थीटा डबल डॉट आर, ये हो गया थीटा कैप। तो हमें फाइनली क्या मिल गया, एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया रेडियल एक्सेलरेशन, और ये क्या हो गया ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। ओके ओके, तो हम लोग कुछ देर के लिए लेट करते हैं कि जो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन है वो F1 है और ट्रांसवर्सल जो है वो क्या है F2 है। तो सिमिलरली अगर हमें एंगल अल्फ़ा दे दिया जाए तो जब हम टेन अल्फ़ा निकालेंगे, अगर इसका डायरेक्शन निकालना हो रिजल्टेंट डायरेक्शन एक्सेलरेशन का, तो हम क्या करेंगे टेन अल्फ़ा और हमें क्या है ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन अपॉन रेडियल एक्सेलरेशन, तो हमें क्या करेंगे F2 अपॉन F1, फिर हमें अल्फ़ा बराबर क्या मिल जाएगा टेन इनवर्स अल्फ़ा F2 अपॉन F1। ओके, ये हो जाएगा। अगर हमें फिर मैग्नीट्यूड निकालना हो एक्सेलरेशन का तो फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अगर हम इन इतने वैल्यू को F1 मान लें, इससे अगर हम F बराबर F1 आर कैप प्लस F2 थीटा कैप लिख लें, तो इसका जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगा। ओके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालेंगे तो ये आएगा। ओके, ये थोड़ा कंजेस्टेड था बट हेल्पफुल था। अब हम लोग एक अलग तरीके से प्रूव करेंगे क्या है इन दोनों एक्सप्रेशन को, रेडियल और ट्रांसवर्सल को। ओके ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक अलग मेथड से रेडियल और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी को प्रूव करेंगे, फिर इसी मेथड से रेडियल और ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन को भी प्रूव करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने माना एक एट टाइम टी पर पार्टिकल्स की पोजीशन कहाँ है पी पर है एट टी, and after a del t time the particle at q, after del t time यानी t प्लस del t, ये क्या होगा r हो गया, ये r प्लस टेल r, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा r प्लस टेल r कामा थीटा प्लस डेल थीटा एट t प्लस डेल t, मीन्स particles move like this, ये थीटा एंड डेल थीटा। एट टाइम टी पर पार्टिकल्स की पोजीशन पी पर थी एंड आफ्टर डेल टी टाइम द पार्टिकल्स रीच एट क्यू। ओके, तो अगर हम इसे लॉन्ग में लिखे तो क्या लिखेंगे, लेट अ पार्टिकल मूव इन अ प्लेन and the path traced by particle is curve and position P at time t and position Q at time t plus del t और आफ्टर टाइम del t। ओके, तो फर्स्ट हम लोग निकालते हैं क्या है रेडियल एक्सेलरेशन रेडियल वेलोसिटी। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे रेडियल डिस्प्लेसमेंट, रेडियल डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग रेडियल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे इसे कुछ इंक्रीज करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ इस पर, ये आर पे ये परपेंडिकुलर हुआ, तो हमें पता है कि डेल टी टाइम में कितना इंक्रीज हुआ, पी आर क्या हुआ हम लोग का रेडियल चेंज आ रहा है, पी आर क्या आ रहा है रेडियल चेंज, रेडियल डिस्प्लेसमेंट पी आर कैलकुलेट करना है,
वेक्टर पी आर, तो वेक्टर पी आर क्या मिलेगा हमें, ओ आर माइनस ओ पी, ओ आर माइनस ओ पी। और हमें पता है कि ओ आर, अगर हम ट्रेंगल ओ क्यू आर देखें तो ओ आर क्या मिलकर आएगा, आर प्लस डेल आर कॉस डेल थीटा। अगर हम इस ट्रेंगल को कंसीडर करें तो ओ आर की वैल्यू ये आएगी और ओ पी की वैल्यू आर गिवन ही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। ओ आर की वैल्यू क्या है, आर प्लस डेल आर कॉस डेल थीटा, और माइनस ओ पी की वैल्यू कितनी है, आर है, ये सॉरी डेल थीटा। और डेल थीटा क्या है, वेरी स्मॉल है, तो हमें पता है जब डेल थीटा वेरी स्मॉल है तो कॉस डेल थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 के। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, आर प्लस डेल आर, और ये माइनस में है, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट, रेडियल डिस्प्लेसमेंट में चेंज इन रेडियल डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन रेडियल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डेल आर आया। तो रेडियल वेलोसिटी क्या होगा, हमें पता है वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। देन पहले हम लोग क्या निकाले, चेंज निकाले, तो चेंज कितना है, डेल आर का आया। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियल वेलोसिटी, तो रेडियल वेलोसिटी कितना आएगा, ये होगा लिमिट डेल टी टेंड टू 0 डेल आर अपन डेल टी। ये हम लोग मैथमेटिकली निकालना है, तो फिर हमारा क्या आ गया, डेल आर अपन डेल टी। अभी हम लोग ने प्रीवियस भी प्रूफ किया था, तो हमारा रेडियल वेलोसिटी इतना आया था। ओके, अब हम क्या निकालेंगे फिर यहाँ पे, ट्रांसवर्सल चेंज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रांसवर्सल चेंज डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है कि जब ट्रांसवर्सल चेंज कितना हो रहा है, वो कितना हो रहा है, आर क्यू हो रहा है, तो हमारा ट्रांसवर्सल चेंज कितना है, आर क्यू है। तो जब हम आर क्यू कैलकुलेट करेंगे, आर क्यू, तो ये किसकी इक्वल आएगा, ये आर क्यू, अगर हमें ओ क्यू आर ट्रेंगल को देखें तो क्यू आर क्या आएगा, आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा। तो हमारा क्या निकल कर आया, आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा। तो हमें पता है डेल थीटा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो साइन डेल थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे आर प्लस डेल आर इंटू डेल थीटा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ आते हैं, आर इंटू डेल थीटा प्लस डेल आर इंटू डेल थीटा। ये क्या है, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, चेंज इन ट्रांसवर्सल डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करें। ये भी क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसे हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इन ट्रांसवर्सल कितना है, आर इंटू डेल थीटा। तो ट्रांसवर्सल वेलोसिटी क्या आएगा, लिमिट डेल टी टेंड टू 0 डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर इंटू डेल थीटा है, टाइम क्या है, डेल टी है। ये जब मैथमेटिकली ये निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा, आर डी थीटा पर डी टी। हमने भी जब प्रीवियस प्रूफ किया था ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, तो इतना ही आया था, आर डी थीटा इंटू डी टी। ओके, ये हम लोग मैथमेटिकली और कैलकुलस के थ्रू हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, रेडियल एंड ट्रांसवर्सल एक्सेलेरेशन प्रूफ करते हैं कैलकुलस के थ्रू। तो पहले फर्स्ट हम फिगर को समझेंगे, एक्स ओ वाई, हमारा एक पार्टिकल्स है जो इस टाइप के कर्व पे मूव कर रहा है, पी पर है कब, एट टाइम टी पर है, एंड क्यू पर कब आ जा रहा है, इस पे कब आ रहा है, टी प्लस डेल्टी टाइम पे आ रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जा रहा है, आर प्लस डेल आर एंड थीटा प्लस डेल थीटा। ओके, थीटा आर डेल थीटा आर प्लस डेल आर। ओके, तो हमने कुछ देर के लिए मान ले रहा है कि जब एट टाइम टी पर है तो रेडियल वेलोसिटी क्या है, यू है, और ट्रांसवर्सल कितना है, वी है। सिमिलरली एट क्यू पर इसका रेडियल कितना है, यू प्लस डेल यू है, एंड ट्रांसवर्सल कितना है, वी प्लस डेल वी है। ओके, सॉरी ये फिगर काफ़ी कंजेस्टेड हो गया, तो इस फिगर को भी हम लोग
इतना हम लोगों ने लेट किया। और फिर सिमिलरली अब हम लोग जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे देखते हैं। सेम फिगर है, ये P है, ये Q है। ओके, तो हमने फर्स्ट हमें करना क्या है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो OP की क्या हो, पैरेलल हो। ये ऐसे जाएगा। तो हमें पता है कि इसके अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो क्या है, u है, और जो इसके अलॉन्ग है ये क्या है, u प्लस डेल यू है। और ये अपना क्या हो गया, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी हो गई, ये क्या होगा, v प्लस डेल वी। यहाँ पर ट्रांसवर्सल वेलोसिटी कितना था, v था, हमने इस फिगर में समझा था। अब देखें तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के चलते ये क्या है, डेल थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना निकल कर आएगा, डेल थीटा आएगा। अब हमें इसे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो इसका हॉरिजॉन्टल ये हो गया, परपेंडिकुलर मान लेते हैं ये हो गया। तो जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा, और परपेंडिकुलर यहाँ पर आएगा u प्लस डेल यू साइन थीटा। ओके, सिमिलरली ये भी हमारा एंगल क्या आएगा, डेल थीटा आएगा। काफ़ी जगह हम लोगों ने ऐसे पढ़ा है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक इस वाले कंपोनेंट पे और एक इस वाले कंपोनेंट पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, v प्लस डेल वी साइन थीटा आएगा, साइन डेल थीटा आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, v प्लस डेल वी कॉस थीटा आएगा, कॉस डेल थीटा आएगा, यहाँ भी डेल है, डेल। ओके, तो अब हम इन्हीं दो फिगर की हेल्प से क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम क्या निकालते हैं, चेंज। सॉरी, वो पेज पे बनाना पड़ा, कुछ रीजन था। तो पहले हम क्या निकालेंगे, चेंज इन रेडियल वेलोसिटी। तो चेंज इन रेडियल वेलोसिटी ये हमारा क्या है, रेडियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये वाला, क्योंकि ये इसके पैरेलल है ये वाली लाइन। तो ये देखिए, ये इधर के डायरेक्शन में है और ये इसके अपोजिट में मूव कर रहा है। तो ये और माइनस यू हो जाएगा, तो क्या होगा, u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इसका अपोजिट में है तो माइनस हो जाएगा, v प्लस डेल वी साइन डेल थीटा। ओके, एंड हमें पता है कि जब किसी भी चीज़ का चेंज निकालते हैं तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो ये तो हम लोग का फाइनल हो गया, और इनिशियल क्या है, u है, तो माइनस u। तो हमें पता है कि ये डेल थीटा काफ़ी स्मॉल है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल थीटा हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं तो क्या मिला, डेल यू माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें, वी प्लस डेल थीटा माइनस डेल वी इंटू डेल थीटा माइनस यू। यू कैंसिल आउट हो गया है, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो चेंज, रेडियल चेंज इन वेलोसिटी आया कितना है, डेल यू माइनस वी डेल थीटा। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो वो क्या होगा, लिमिट डेल टी टेंड टू 0 डेल यू माइनस वी डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे हमें क्या मिल कर आया, डी यू माइनस वी डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने यू क्या है, रेडियल वेलोसिटी है, तो ये किसकी इक्वल होता है, डी आर अपॉन डी टी की होता है। और वी क्या है, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, ये क्या होता है, आर डी थीटा अपॉन डी टी की इक्वल है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो क्या मिलेगा, डी यू अपॉन डी टी माइनस वी डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ पे हम u की वैल्यू पुट करेंगे, ये u के बराबर है, तो u की वैल्यू क्या है, डी आर अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी इंटू डी आर अपॉन डी टी माइनस यहाँ पे v की वैल्यू ये पुट करेंगे, r डी थीटा अपॉन डी टी, और ये पहले से गिवन है, ये डी थीटा अपॉन डी टी। तो हमें यहाँ क्या मिल गया, ये सेकेंड ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन है। तो यहाँ पे
डबल डॉट लगेगा माइनस आर, ये थीटा डॉट इंटू थीटा डॉट यानी थीटा डॉट का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या गया रेडियल एक्सेलेरेशन। प्रीवियस में जैसे हम लोगों ने प्रूफ किया था सेम वैसे ही आया। और हमने यहाँ पे देखें कि जब हम लोग ट्रांसवर्सल के लिए प्रूफ करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, चेंज इन ट्रांसवर्सल कंपोनेंट में होगा। तो पहले निकालेंगे क्या, चेंज इन ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, v प्लस टेल वी कॉस टेल थीटा प्लस ये दोनों सेम डायरेक्शन में ये और ये, तो ये दोनों ऐड होंगे, प्लस u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा। हमें पता है फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो इनिशियल क्या है, v है। जब हम लोग सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ट्रांसवर्सल एक्सेलेरेशन आएगा वो किसकी निकल आएगा, टू आर थीटा आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। ओके, तो हम लोग ये आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, नहीं होता है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूफ करेंगे। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।